आप सबको धन्यवाद। हिंदी में शायद आपको भी जानकारी होंगे कि हिंदी में एक कहावत है जिसको मैं थोड़ा पढ़ के सुनाना चाहते हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यही हाल है वित्त मंत्री जी का। वो वित्त मंत्री नहीं, खींच मंत्री है। वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर इस देश को रसातल में पहुंचा दिया। इनका एक ही ध्येय है, हम दो और हमारे दो। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की कोई मनगढ़ंत तथ्य नहीं। ऑक्सफैम की तथ्य ये कहते हैं कि हाउ ये हिंदुस्तान की हालत और ये हालात को सामने रखते हुए हम हिंदुस्तान के अर्थ मंत्री जी को ये पूछना चाहते हैं कि हाउ डज सी एक्सप्लेन दी दैट द लॉकडाउन मेड India's billionaires 35% richer, while 84% of households suffered income loss and 1.7 lakh people lost their jobs every hour in April 2020 alone. How does she explain that income increases for India's top 100 billionaires since March 2020, which was enough to give each of the 13.8 crore poorest people a check of over rupees 94,000 each? FM's misplaced priorities include tax concession for corporates in financial year 2019-20 that amounted to over 1.4 lakh crore. Instead of creating jobs, they used for money for cleaning up their balance sheets. आपको ये भी जानकारी होंगे लोन राइट ऑफ के बारे में। In 2018-19, banks wrote off about 2.38 lakh crore of non-performing assets, which are mostly loans defaulted by corporate. But the FM will soon scorn at every given opportunity if the issue of waiving loans of farmer ever arises. ये मनरेगा की एग्रीकल्चर आउटले, सब्सिडी, एडुकेशन, एक के बाद एक आप देखते जाइए। How does she explain reducing the outlay for agri and allied budget from 1.54 lakh crore in previous budget to 1.48 lakh crore in this budget, a cut of 6%? It has been reduced from 5.1% to 4.3% of overall budget. What could be the possible explanation for slashing the Manrega a fund in her budget? The allocation to Manrega has been cut from rupees 1.66 lakh crore this year to rupees 96,773 crore in 2021, a cut of around 42%. Petroleum subsidy. Each and everybody of our country has been suffering because financially because of the unprecedented hike in petroleum products. See, the petroleum subsidy, which goes to the subsidies LPG and kerosene, drastically cut by 68% from rupees 40915 crore to rupees 12995 crore. ये भी आप जानते हैं लगातार हिंदुस्तान के डीजल, पेट्रोल और रसोई की गैस की दाम किस ढंग से बढ़ते जा रहे हैं, इजाफा हो रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं। तो इसे सरकार हमारे ऊपर ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। They are getting they are getting rattled when these pertinent issues are being raised by our party men, our party leaders. Instead of delivering the appropriate answer to our queries, questions, and etc., the government and in general and today the finance minister in particular has been hurling the derogatory remarks against our
party leader Sri Rahul Gandhi ji. So this is the government which does not honor the leaders and workers of the opposition party by riding roughshod over the opposition questions, concern. They, I mean, the government has been trampling each and every demand of our party and the common people in general across the nation. So that is why party thought it prudent to at least flag your attention that the economy of our country has been in a stasis. Unemployment sector has been registered a dismal scenario. Overall, the across the country, we are witnessing an unprecedented downturn in each and every sector. So when Rahul Gandhi made his speech, he didn't name anybody when he gave this slogan "Hum do hamare do." But in today's speech, the finance minister, he directly named the See, Gandhi family. immediately I stood up there and objected to the comments of Honorable Finance Minister. And even I exhorted her that being a Finance Minister of India, she should not indulge in such kind of unparliamentary activities inside the house. So immediately we took a serious exception to the comment made by Finance Minister. एग्री इन्फ्रा सेस जो लगा है एग्री इन्फ्रा के ऊपर उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एग्रीकल्चर में सेस की बात तो हो रही है। आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेस और सरचार्ज, इससे जो धन और राशि कमाया जाते हैं, ये धन सूबे की सरकार को नहीं बांटा जाता। ये धन सारे इकट्ठा करके सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एक्सचेकर में रख देते हैं, अपने कॉफर में रख देते हैं। मुंह में तो ये बड़ी बड़ी बात करते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, लेकिन फेडरलिज्म की सबसे बड़ा मुद्दा ये होते हैं कि इसमें बंटवारा हो, डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स हो, एलोकेशन। लेकिन ये सरकार सूबों की सरकार को वंचित करते हुए अपना जेब भरना चाहते हैं। और एक बात, ये बड़ी चिंता की विषय है, ये सरकार अपना बजट में घाटा को, अपने बजट के घाटा को कॉम्पेंसेट करने के लिए ये क्या करती है, सेस और सरचार्ज की इजाफा करते जाती है। 40% सेस की इजाफा हुई है ये सरकार सत्ता पे आने के बाद। मतलब इनका रेवेन्यू कलेक्शन में काफी इनकी नॉन परफॉर्मेंस, इनकी कमियां ये स्पष्ट हो चुके हैं। इसलिए बाकी चारों तरफ से कहीं हमारा जो फैमिली सिल्वर है, हमारे देश की जो इंडस्ट्री है, इसको बेच डालो, मॉनिटाइजेशन करते जाओ, सेस एग्रीकल्चर के नाम पे सेस लगाते जाओ, लेकिन सूबों की सरकार को हम नहीं कुछ बांटेंगे। इसका मतलब ये सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात तो करते हैं, लेकिन ये सरासर ये सरकार एक सेंट्रलाइजेशन करना चाहते हैं। ये बड़ा चिंता की विषय है कि ये केंद्रीकरण की राजनीति ये सरकार की सबसे आगे हमारे देश के लिए खतरा बन सकते हैं। फेडरल बजट को पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी जो डिफेंस पर है, उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि हम लोग एलएसी का विजिट करेंगे। राहुल जी भी उस कमेटी के मेंबर है। आप लोग को लगता है कि पार्लियामेंटेरियंस को जाकर वहां पर ऑन ग्राउंड जाकर आज ही हम सदन में मुद्दा उठाया। अमित शाह जी को कहा कि आप कश्मीर के बारे में जिस ढंग से कहते रहते थे, तो मुझे तो ऐसा लगा कि मोदी जी ना वो डाल ले खोद के चले आए। लेकिन ये सरकार को जब ये एब्रोगेशन किया था, ये 370, उसके बाद हम लोग ये गुहार लगाई सदन के अंदर सदन के बाहर कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा जाए। ये सरकार ऑल पार्टी डेलीगेशन तो नहीं भेजा, बदले
यूरोपियन यूनियन से लीडर बुला के भेजते रहे। दिल्ली में जो एम्बेसडर रहते हैं बहुत सारे देशों की, ये एम्बेसडर को खातिर करके सारे खर्चा मुहैया अपने तरफ से मुहैया मुहैया कराते हुए ये छुट्टियां और पिकनिक बनाते हुए कश्मीर भेज रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की जो नुमाइंदे हैं हम लोग, हम बार बार गुहार लगाए थे, फिर भी ये सरकार को इजाजत नहीं मिली। कश्मीर पर जब आज डिस्कशन चल रहा था तो अमित शाह जी ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया आपकी पार्टी पर। उन्होंने कहा कि आप लोग धारा 370 पर अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाए हैं कि आप इस तरफ हैं या उस तरफ हैं, आप लोग बीच में क्यों हैं? देखिए, 370 धारा की जब चर्चा हुई थी सदन के अंदर, तब हमारे सारे वक्ताओं ने, एक नहीं कई वक्ताओं ने एक के बाद एक भाषण दे चुके हैं। अमित शाह जी फिर गुमराह कर रहे हैं। आज तो मुद्दा दूसरा था कि 370 हटा दिया, 35 हटा दिया। हमने पूछा था, हटा तो दिया, लेकिन हुआ क्या? आपने उस समय सदन के अंदर जो वायदा किए थे, वो वायदा के बारे में कुछ तो कहो कि मैं हटाने के बाद कश्मीर घाटी में विकास हुई है, कश्मीर घाटी में बदलाव आए हैं, क्या हुआ? यही हम पूछ रहे थे। जवाब उनके पास नहीं है। फिर गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए उनका जो तरीका है वही तरीका अपनाया। हमारा बात तो रख दिया, लेकिन उन्होंने जो सपना दिखाए थे, मैं ये भी कहा कि आपने कहा था कि जम्मू कश्मीर की जो पंडितों है वो तो हिंदू है, वो तो कम से कम मुसलमान नहीं है। 2014 की चुनावी मैनिफेस्टो देखो, 2019 की चुनावी मैनिफेस्टो देखो, हर जगह उन्हें वादा किया था कि हमें सारी पंडितों को वापस भेजेंगे, भेजा गया। तो ये हम जब पूछते हैं, जवाब नहीं उनके पास। हमें ये भी पूछा कि बताइए जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट क्या हुई, जम्मू कश्मीर में नौकरी क्या हुई। आज आज अभी अभी मैं बता के आया, सिर्फ 370 हटाने के बाद पहला 5 महीने में 90,000 लोगों को नौकरी गई, पहला 5 महीने में। उसके बाद छोड़ दो, आप सारे जम्मू कश्मीर घाटी को कैद खाना बना दिया। कितने सारे लोगों को आप जेल में आप बंदी किया, वो भी आप आज भी वो जेल में सड़ रहे हैं। मैंने ये पूछा कितने लोगों को आप पीएसए और यूएपीए लगाए। आप कहते हैं कि मैं तरक्की किया, शांति बहाल किया। तो अगर शांति अगर बहाल रहे तो लोगों को इतना जेल भेजने की क्या जरूरत है? जवाब नहीं उनके पास। चलो चलो चलो, मैं ये जानते हैं आज क्या हुआ? मैं ये हमारे पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं 2-4 मुद्दा नोट करके लाया था। मैं भूल गए थे, अपना बैग में छोड़ के चले आए थे। तो हमारा जो पीए साहब है, उनको मैं खबर दिया कि हमारे पर्ची लेके आओ। सदन चल रहे थे, वो पर्ची लेके आए और एक मार्शल के जरिए, वो हमारे स्टाफ के जरिए हमारी हवाले करे। तो अमित शाह जी कहने लगे, वो बाहर से तुम कागज लेके यहाँ बोलते हो। मैंने कहा आपका तो खुफिया तंत्र है, पता कर लो। यही उनको खुफिया तंत्र को बताते हैं कि यही मेरा पास ये पत्र था। उन जैसे सरकारी दस्तावेज तो मेरे पास नहीं रहते, लेकिन ये जरूर रहते। हमारे पास तो पेपर रहना जरूरी है, क्योंकि ये सरकार की जो गलती है, वो गलती को पकड़ने के लिए, आम लोगों के सामने उजागर करने के लिए हमें भी कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, इसलिए कभी कभी इसका इस्तेमाल होते हैं। तो फिर अमित शाह जी का खुफिया तंत्र के कह दे, आपको जो मैंने सवाल पूछा था उसके साथ हमारा, आप जो पेपर की बात कहे थे उसका कोई ताल्लुकात नहीं है, ये पेपर है। सर एक मिनट नहीं एक मिनट, एक टोटली जब दादा ने सवाल किया था भाई नौकरियां, उन्होंने कहा था भी कोई नौकरी नहीं दी गई कश्मीरी पंडितों को। मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, दादा और मैं अब भी होम कमेटी में है, और जब 2009 और 14 तक होम कमेटी हम कश्मीर गए थे, उस टाइम जब यूपीए सरकार थी, तो हजारों पंडितों को नौकरियां और कश्मीर में फ्लैट दिए गए थे जहां वो रह रहे थे, सुरक्षा थी और नौकरियां उन्हें उस टाइम कश्मीरी पंडितों को दी गई हैं। आज लेकिन उन्होंने कहा कोई नौकरी नहीं। और दूसरा उन्होंने कहा भी हमारी सरकार, ऑन रिकॉर्ड कहा भी हमारी सरकार कोई कानून से नहीं चलती,
किसी और चीज से नहीं चलती, जो हमारे दिल में, जो हमारे दिमाग में आता है उस तरीके से सरकार चलती है। आखिरी 2 मिनट का उनका भाषण सुन लिए जिनमें उन्होंने कहा है भी हमारी सरकार किसी कानून से नहीं चलती। नहीं नहीं, पता नहीं, और चीफ जस्टिस सीबीआई डायरेक्टर की कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं आया, कोई बुलावा भी नहीं आए हैं। इसी बीच तो उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को प्रमोशन कर दिए हैं उसमें, लेकिन वो भी पद स्थायी पद नहीं है, अस्थायी रूप से किसी को वहाँ बैठा दिया।